ओके, टॉपिक इज अ बिट लेंदी, राइट? बिकॉज चाइना के बारे में आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड यू नो सिंस द टॉपिक इज लॉन्ग टॉपिक, देखते हैं आज कितना कवर कर पाते हैं कंफर्टेबली। अदरवाइज देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट वी विल डू टुमारो, ठीक है? स्पेशली द चाइना यूएस ट्रेड wars causes, and you know how that has flared up and what openings are there for the countries. I think ये वाला काम हम कल कर पाएंगे, आज नहीं हो पाएगा, right? So let's get into something which is not known to you, the history, the legacy, right? How China has become what it has become, right? The problem, the point is historical perspective, ठीक है? इसको शुरू करते हैं। Am I audible? पक्का बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज? नुपुर? Okay. Yes, sir. Fine, thank you. ओके चैट्स में ठीक है, थैंक यू क्रिस्टल क्लियर सर, और आपके किचन से बड़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है। ये अनुपम सर पीछे से कुछ करते रहते हैं बदमाशी। हाँ, आपको स्मेल भी आ गई सर, वाह वाह सर। कौन से वाले आपके पास वो है सर, ब्रॉडबैंड जिसमें स्मेल भी आ जाती है? दिस इज फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, टुडे यू आर लाफिंग बट लेट्स सी। हाँ, आएगा मेरे को लग रहा है किसी ना किसी दिन आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। चलो, so let's start, right? So the first thing, right, we all know that China became independent in 1949 and we became independent in 1947, right? So almost the same times, right? Almost the same period that two of the biggest you can say economies today, almost 70 years back, we became independent, right? And China was People's Republic of China and India became a socialist republic, that kind of a thing, right? A democratic republic, right? So that was the way. But China in its initial phase, right, from 1949 till around 1977, right, was ruled by the father of the nation. Who was the father of the nation? China? कोई बोलेगा? चाइना का फादर ऑफ द नेशन कौन था? माओ सर। करेक्ट, चेयरमैन माओ, राइट? I can write the name or you can check it out. Mao Zedong was his Chinese name and the English version is Mao Zedong, ठीक है? Now very interestingly, very interestingly, I don't know whether you have ever come across this or not, the Chinese actually have two names. One is their Chinese name and the other what they keep for the English speaking world, right? So all the Chinese would actually have a Chinese name and also have this thing, right? You know, on their passports you have their Chinese names, but you'll call them very differently. For example, a Chinese person will never be named Rebecca or something. So Rebecca, Mark or something like that, those would be your English names for their Chinese names, right? So they have a Chinese name and they have an English name, right? Which can be comfortably spelled out by the English speaking population, right? So Mao Zedong was the English name and Mao Zedong was his Chinese name, right? So 1949, father of the nation, the person who brought China together, the person who established People's Republic of China, he ruled till 1977. So 1949 to 77, समझ लो 28 years, right? China was in bad shape. China was in bad shape because it was a communist regime. They had no elections or nothing of that sort, right? There was only one party called the Communist Party of China, of which Mao was the inherited leader, kind of a thing. He built this party, so he became the leader. So China under Mao was a big failure, you can say that, right? So their industries failed, their initiatives failed. They were having big rivers which always had floods, something like we had in India. We have in India, right? Almost the same thing.
वही होता रहता था, मतलब ऑलमोस्ट 1980s तक जो इंडिया की हालत थी वही चाइना की हालत थी. So they were facing famines, they were facing floods, they were facing all kinds of things. ठीक है, तो वो सारी चीजें उनकी भी प्रॉब्लम चलती रही, हमारे यहाँ भी चलती रही. They were facing overpopulation, we were facing overpopulation. They had unemployment, we had unemployment. The state sector tried to do a lot of things, they failed miserably. Our PSUs, they tried to do a lot of things, we failed miserably. So 1980 तक, 79 तक, Mao died in 1977. ठीक है, तो ऑलमोस्ट तब तक हालत बहुत खराब रही है, राइट? इट वाज बैड. There was the China that we see today was not in those years, right? So these two economies were, they were big countries, but they were very in bad shape, economically very bad shape, right? Then comes a person, 1979, you know, the person whom you see on the screen on the right hand side. The name is Deng Xiaoping. D-E-N-G, Deng, X-I-A-O, Xiao, P-I-N-G, Ping. Now, he is the man who is credited with building modern China. So whatever China that you see, you can say the father of the modern China, father of the nation, is Deng Xiaoping, not Mao. Mao के रूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, lot of problems, right? So this was the guy who initiated, right? Now Deng ने एक बहुत important statement दिया, you know, that shows कि एक कम्युनिस्ट पर्सन के हाथ से ऐसा स्टेटमेंट आपको वैसे सुनने को नहीं मिलेगा. You'll never hear a communist in those days, you know, making this kind of a sentence. And you know, and this is a very famous quote which you all should note also. The color of the cat does not matter as long as it catches the mice. Now, what does this statement tell you, right? So basically it was a what? बोलो, कम्युनिस्ट regime था. तो कम्युनिस्ट regime में कैपिटलिज्म तो प्रमोट हो ही नहीं सकता है, right? Obviously, if you are communist, then you cannot have capitalism, obviously. So there was no capitalism, could never be promoted, right? So this guy Deng Xiaoping was the one who said that, you know, हाँ हाँ आ रहे वन चाइल्ड पॉलिसी भी आएगी भैया, रुक जाओ सब आएगा. So he was the guy who said the color of the cat does not. अब यहाँ cat में वो बोल रहा है कि मुझे नहीं मतलब इकोनॉमी तुम कम्युनिज्म से चलाओ या तुमको उसमें शेड्स ऑफ कैपिटलिज्म डालना पड़े. My purpose is that the Chinese people should get out of poverty, they should get employment, and China should become a developing country. So that's what he said when he invited foreign direct investments, जो कि एक कम्युनिस्ट regime में कभी नहीं हो सकता है. So he shunned communism, right? In practicality, that means for economically China started to shun communism and they adopted capitalism. वहां से उन्होंने कैपिटलिज्म को इनवाइट करना शुरू किया. So that is what he said, and what he meant that the color of the cat does not matter as long as catch the mice. That means I don't care whether it is, you know, communist or capitalist, as long as the economy goes up. So that talks about the vision of a person, right? And this person was responsible for building up China. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन काफी था, फेमाइंस आते थे, फ्लड्स आते थे. There was one policy that was not well taken, but he somehow managed to implement it. That was the one child policy. So 79 से 1995 तक, almost 16 years, चाइना ने enforce की थी one child policy. Please keep making notes, हाँ, ये सब बाद में मिलेगा नहीं. So 1979 to 1995, China strictly followed the one child policy. They said the second child, you cannot have the second child. If you take it, the state is going to take it away. The second child will be taken away by the state. Allowed ही नहीं था. Because
they desperately wanted to control the population. उनको लगा कि population control करना, चाहे जो भी करना पड़े, we'll do it, right? And in communism you don't have any, you can say, you cannot voice your opinion or do anything of that sort. So it was forcefully implemented 16 years, but that period basically China was able to reduce its population growth rate drastically. ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो बात की बात है, बट जिसको बोलते हैं एक इनफेमस स्टेप था वन चाइल्ड पॉलिसी. नाउ आई विल आल्सो रिकॉल हियर एंड ड्रॉ एन एनालॉजी, जो कि आप में से आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट इवन बी अवेयर एक एनालॉजी के बारे में. ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्कीम इंदिरा गांधी के रेजिम में उनके सन संजय गांधी ने भी लॉन्च की थी, which is called वन चाइल्ड पॉलिसी. नहीं था, बट कुछ और नाम था. करेक्ट शुभम, वेरी गुड. वैसेक्टॉमी ड्राइव, that means forced sterilization, right? तो संजय गांधी जी ने भी माओ को देखते, सॉरी डेंग शाओपिंग को देखते देखते he also took a drastic step to control Indian population and he said वैसेक्टोमीज कर लो, that means sterilization कर दो मेल्स का. ठीक है, it was almost a forced sterilization in which males were taken away to district hospitals and vasectomy was done so as to reduce the population growth rate. Unfortunately, fortunately 1977 के बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई थी. ठीक है, 75 से 77 तक तो आपका इमरजेंसी पीरियड था. 77 के बाद इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट गिर गई थी, मोरारजी देसाई आ गए थे एंड दिस वैसेक्टॉमी ड्राइव एक्चुअली fell through. But think of a situation, had that continued, had Morarji Desai not come into power, right, and Indira Gandhi would have remained in power, things would have been different because Sanjay Gandhi was very powerful then. Second, Sanjay Gandhi, when Indira Gandhi came to power in the second round, that is 1980 to 1984, before she was assassinated, Sanjay Gandhi also died in 1980. So Sanjay Gandhi की भी death हो गई थी because of a plane crash. But imagine, almost similar policy संजय गांधी ने भी adopt की थी कि forced sterilization कर दो, population control हो जाए, right? This was probably the only time a political leader in India thought very seriously. Now you may like it, you may dislike it, you may not agree with it, that is your call. बट ये इकलौती बार था जब किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन ने पॉपुलेशन को एज अ प्रॉब्लम देखा था और उसके लिए स्टेप लिया था. वेदर दैट स्टेप वाज करेक्ट, इनकरेक्ट, वायलेशन ऑफ फ्री विल, फंडामेंटल राइट, तुमको जो बोलना है बोल लो, सोच सकते हो. बट पहली और आखिरी बार ये हुआ, इसके बाद कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा, राइट? उसके बाद कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा, इतना ड्रास्टिक कोई नहीं सोच पाया. ठीक है, बट उधर पे डेंग थे, डेंग शाओपिंग ने ये कर दिया. 1995 तक उन्होंने चाइना की पॉपुलेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया था. So we'll remember 1979 as the birth of New China, or parallel when you'll draw, you'll say 1991 the birth of New India. So keep these two figures in mind. ये सिर्फ दो साल आप याद रख लो. 1979 birth of New China, 1991 birth of New India, which is जो दर्पण सर ने आपको पढ़ा दिया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991. ठीक है, तो इन दोनों सालों में 12 साल का फर्क है, 79 versus 1991. So you can say in almost all GDs, essays, whichever interviews, wherever you are supposed to quote this, that we started 12 years later. Vasectomy drive continued 75 से चल रही थी, 75, 76, 77, 3 साल तो चली before this government fell. And then Morarji Desai decided to discontinue, मतलब discontinue नहीं, इसको बहुत कम कर दिया था, forceful नहीं था तब. मोरारजी देसाई ने खत्म करवाया था, उसको कम कर दिया. ठीक है, बट इट वाज इमेजिन, मतलब इट वाज वेरी स्केरी आल्सो, इट वाज स्केरी आल्सो, राइट? फोर्स वैसेक्टोमी ऐसा नहीं होता था, वो उठा के ले जाते थे, आपको बोले वैसेक्टोमी कर देते हैं, 1200 रुपए आपको मिलते थे मेल्स को. उस जमाने में 1200 या 800 रुपीज मिलते थे, 400 या 800 रुपीज मिलते थे. और फीमेल्स की वैसेक्टोमी नहीं करते थे, वो मेल्स की वैसेक्टोमी ज्यादा होती थी. ठीक है, ताकि आप
बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। तो that was, you can say it was a horror kind of a situation, but it did exist in our country, ठीक है। तो जो डेंग वहां कर रहे थे वो भी यहाँ पे भी वही कुछ हो रहा था, ऑलमोस्ट ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। हाँ, हिंदी में उसको नसबंदी बोलते थे, करेक्ट। So I'm just drawing a parallel because most of you are not even aware of this, dark part of our history. थोड़ी हमारी political history के कुछ dark parts हैं, ये dark parts हैं। Emergency period was a dark part. This was a dark part, right? चलो, अब जरा चलते हैं डेंग ने क्या किया। December 1978, Deng Xiaoping introduced the 4 modernizations. This was a plan designed for China to become an economical power in the world market. First target was agriculture. Somebody else, I'll have to mute. Mudit, तुम थे शायद। Agriculture, industry, science and tech, and special economic zones. अब फिर वही बात है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट चाइना ने इनिशिएट किया, शुरू किया और बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, विच इंडिया अडॉप्टेड वेरी लेट। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने में बहुत टाइम लगाया, वी वर टू लेट टू अडॉप्ट, राइट। व्हाट यू स्टार्टेड, ये कौन है A1 बायोलॉजी क्लास, अपना नाम तो ठीक कर लो, ठीक है। सो दैट इज अच्छा लाइन, अरे वही बोला था ना यार, क्या बोला था, डेंग शॉपिंग की लाइन बोल रहे हो तुम सिमरन। द कलर ऑफ द कैट डज नॉट मैटर as long as it catches the mice, ये उनका स्टेटमेंट था, ठीक है। So let's come to Deng's initiatives and we'll discuss this. First was agriculture, second industry, science and tech, and special economic zones, SEZ, what do you call it, SEZ. Agriculture, there was a new system for farmers. This meant that the farmers have a contract with the government, locks stating that how much was expected of them, that they minimally produced. Everything that they produced, more was left to the free market. तो हुआ क्या, अब यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप हमको इतने टन आप इतने क्विंटल से इतने टन आप अपना फार्म का प्रोड्यूस दोगे, यदि इससे ज्यादा करते हो तो यू कैन सेल इट इन द फ्री मार्केट, ठीक है। सो एवरीथिंग दे प्रोड्यूस्ड मोर वाज लेफ्ट फॉर द फ्री मार्केट। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी, दे कुड नाउ ओन एन इनकम. This measure greatly stimulated the production. The agriculture production increased consistently by 7.9%, and in 1984 China became self-sufficient in food grains. 1984 China became self-sufficient in food grains. Now by that time we were also self-sufficient in food grains. After the first grain revolution and all those things, we were also self-sufficient in food grains. वहां पे प्रॉब्लम हमारी भी नहीं थी. So they also became self-sufficient in food grains. देखो किसी भी कंट्री के लिए सबसे पहली जो सिक्योरिटी होती है, that is food security. Agreed? मान रहे हो इस बात को, सबसे पहला जो हिट चीज करेगी that is food security. Then would be social security. Obviously पहले food security चाहिए, फिर social security चाहिए आपको. तो food security they were able to achieve because the agricultural reforms were put in place, right? Second, industry. Second half of the 90s, the focus was on industrial reforms. The focus was no longer solely placed on heavy industry, but light industry consumables. This change was modernization of machinery. तो टेक्नोलॉजी जो थी वो उन्होंने जापान से इंपोर्ट की, वेस्ट से इंपोर्ट की और खुद को उसको R&D करके सुधारना शुरू किया, ठीक है। So and since they were importing these technologies, so they had typical reverse agreements with the countries कि यहाँ से जो produce होगा हम आपको वापस बेचेंगे. So that is how Chinese goods started flowing back to the Western world, ठीक है, right? तो Chinese goods वापस जाने लग गए Western world में, ठीक है। Initially the Chinese goods were of inferior quality, काफी inferior quality का सामान जाता था, ठीक है, जो कि टिपिकली लोअर एंड कंट्रीज में जाता था, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो वेस्टर्न यूरोप तो बहुत एडवांस चलता है, ठीक है, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जाता था, अफ्रीका जाता था, साउथ ईस्ट एशिया जाता था,
lower quality goods, not very high quality goods, right? The government wanted, अच्छा इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, right? इनको ये समझ में आ गया कि यदि आपको इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग चाहिए होगी, ठीक है? नाउ वेरी सरप्राइजिंगली चाइनीज बैंक्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. सो चाइनीज बैंक्स की जो लेंडिंग होती है दैट इज एज डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. चाइनीज बैंक्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? सो दे टिपिकली डू द लेंडिंग एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स. वो उनके हिसाब से लेंडिंग करते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब जो इंडिया में नहीं था, इंडिया में बैंक्स वर इंडिपेंडेंट, राइट? ठीक है, बैंक को गवर्नमेंट बोलती है कि तुम प्रायोरिटी लोन्स दे दो, ये करो वो करो, बट स्टिल देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस. चाइना में वैसा नहीं था. बैंक्स वर सपोज्ड टू लेंड ओनली टू गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स. बट उससे एक फायदा हुआ, गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स को फंडिंग बहुत आसानी से मिल जाती थी. इट बिकेम वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स टू गेट अ फंडिंग. और एसईजेड आपने खोल ही दिए थे, हम उसकी बात करते हैं. एसईजेड में क्या हो जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, राइट? बिकॉज एसईजेड में आपने नॉर्म्स और रूल्स काफी सिंपल कर देने होते हैं. तो यू सिंप्लीफाई द नॉर्म्स एंड रूल्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाता है. सो इफ यू टेक एनी कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, किसी भी साल में देख लो फ्रॉम 1995 ऑनवर्ड्स, चाइना के पास जो एफडीआई आता है दैट इज एटलीस्ट 10 times that of India. So China attracts an FDI which is 10 times that of India, 10 guna. So that saw the influx of Western capital in China, right? तो इंडस्ट्री कैसे रिवाइव की? शॉर्ट इंडस्ट्रीज बनाई, छोटी बनाई, कंज्यूमेबल्स की बनाई, कि बड़ी चीजें नहीं बनाएंगे, कारें नहीं बनाएंगे. They'll not make cars, but they'll make spare parts. They'll make components. हॉर्न बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं, सीट बना रहे हैं, कांच बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. पूरी कार नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्ट्स बनाएंगे. सो दे स्टार्टेड विद दैट काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? सो पार्ट्स में काम करना शुरू किया इन्होंने, राइट? स्पेयर पार्ट्स, स्मॉल प्रोडक्ट्स, नॉट ग्रेट. टॉर्च बना रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स. नॉट हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इनिशियली, बट दैट वाज पॉसिबल. फंडिंग हो जाती थी बैंक से, एफडीआई से. आके आप क्या हो गया आपको, यू गॉट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स आल्सो. तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई, चीप लेबर आपके पास अवेलेबल थी, और आपने बनाना शुरू किया बेसिक प्रोडक्ट्स. बहुत ज्यादा नहीं, हाई एंड नहीं, बेसिक प्रोडक्ट्स. साइंस एंड टेक. नाउ दिस गाय अगेन हैड दैट आइडिया कि भाई अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड and all those things, but this cannot continue. This cannot continue. तो क्या करना पड़ेगा, लोकल टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, साइंस डेवलप करना पड़ेगा. एंड दे एस्टैब्लिश सम गुड यूनिवर्सिटीज, राइट? यूनिवर्सिटीज बिल्डअप की गई और काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाई गई टू क्रिएट लोकल टैलेंट, समथिंग which Jawaharlal Nehru did by the formation of IITs and IIMs. तो अब एक चीज देखो, एजुकेशन का जो काम था वो इंडिया में पहले शुरू हो गया था. वी हैड IITs and we had IIMs in the early 60s. चाइना में ये सब चीजें आनी शुरू हुई हैं 90s में. बट since they were communists, they could implement things very fast and with high degree of annoyance to the normal people. लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी. लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, इंग्लिश मैंडेटरी कर दी स्कूल्स के अंदर. That they could do because communist regime, they can force, there is no opposition, right? हमारे यहाँ ये चीजें पहले आ गई थी, but owing to our democratic setup and corruption and other things, ये बहुत slowly, they could not deliver what they were supposed to deliver. नहीं कर पाए हम उतना deliver. ठीक है? Okay. So China resulted in recording major producer of consumer goods from cheap toys to textile to low grade quality hardware. हम सब चाइना ने सब बनाना शुरू कर दिया and started exporting it in huge quantities. ठीक है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट हुआ, यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स डेवलप हुए, एंड काम शुरू हो गया इस पे. The last part which he did was establishing of special economic zones, right? Now imagine in a communist country allowing foreign direct investment, that is capitalism, right? That is what he did.
That is what Deng did. Right? Laws were much milder. After the success of SEZs, the government decided in 1984 13 new areas to establish so-called open cities. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनाए open cities, जिसमें इन्होंने बोला it's not compulsory that only Chinese people will live here. You can come from any part of the world and live in this city. They created these new cities. ठीक है? न्यू सिटीज से एक और काम किया इन्होंने, अपने पुराने सिटीज पे से बर्डन हटाया. राइट? सो बीजिंग, शंघाई, जो ईस्टर्न कोस्ट की सिटीज है, उस पे से बर्डन हटाया और ये नए शहर अंदर की तरफ बने. दैट मींस द हिंटरलैंड, नॉट द कोस्टल चाइना, बट अंदर की तरफ, सेंट्रल चाइना की तरफ बनाए. व्हाट हैपेंड? द रूरल माइग्रेशन जो होता था, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल सेंट्रल चाइना, द सेंट्रल चाइना, हिंटरलैंड ऑफ चाइना टू कोस्टल एरिया, वो जो होता था वो रुकना शुरू हो गया. बिकॉज दीज ह्यूज सिटीज केम अप in the middle of Chinese hinterland. So, अब इसमें से आपको एक दो सिटीज के नाम आपको पता लग, जैसे शंघाई, पहले सिर्फ बीजिंग था, शंघाई वाज क्रिएटेड. ग्वांगझाओ, आज की डेट पे मेजॉरिटी प्रोडक्शन की जो चीजें आती है चाइना में, वो आती हैं ग्वांगझाओ से. दैट इज द लास्ट बट थर्ड. बेहाई, जांगजिंग, और अभी जहां जहां अपना कोविड ब्रेकअप हुआ था, कौन सा था? वुहान. राइट? सो दीज सिटीज वर क्रिएटेड, ये सिटीज बनाई गई. तो इन सिटीज को बनाने से दो पर्पस सॉल्व हुए. पहला, हिंटरलैंड से जो माइग्रेशन होता था वो बंद हो गया. you could create those job opportunities in the hinterland itself. And second, the local development started happening. So, and what else? जो कोस्टल सिटीज पे बर्डन आता माइग्रेशन का, वो हट गया, वो रुक गया. So Beijing could now remain the capital without having the additional burden, जैसे हम दिल्ली के साथ कभी नहीं कर पाए. अब दिल्ली के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने न्यू दिल्ली बना दी, उसके बाद कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया, बट हम उसको एज अ सेपरेट एंटिटी नहीं ट्रीट कर पाए. दिल्ली हैज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन. क्यों? क्योंकि सारा उस एरिया का सारा बंदा जो है वो सब दिल्ली आ जाता है जॉब करने के लिए. फिर अब क्या किया? एनसीआर बना दिया हमने, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया, थोड़ा सा उसको एक्सपैंड किया, सोनीपत तक इधर गए, उधर हमने फरीदाबाद को इंक्लूड कर दिया, इधर गुड़गांव को इंक्लूड किया. तो ये सब किया है, नोएडा इंक्लूड किया. But again, central crux जो है वो दिल्ली है. We could not create those big new cities except probably a city like Chandigarh, जो एक नया शहर बनाया हमने. So not too many new cities could be created in India. That is probably where we failed, and that is where we failed to create to stop the migration, right, and to stop the influx into major cities. तो वो प्रॉब्लम आज हमको दिखाई देती है कि सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रम्बलिंग अंडर द पॉपुलेशन लोड. वो प्रॉब्लम है हमारे पास आज की डेट पे, राइट? बट दिस इज व्हाट चाइना डिड ब्यूटीफुली. दे क्रिएटेड ओपन सिटीज व्हिच नाउ हैव बिकम हब्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? सारा प्रोडक्शन यहाँ होता है. ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुमको जब ये समझ में आएगा कि ओपन सिटीज कहाँ बने, और अभी मैं आपको चाइना के मैप में भी दिखाऊंगा वो चीज, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन्होंने शुरू ही क्यों किया है. आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि ये हिस्ट्री जाननी जरूरी है. इसके बिना आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का लॉजिक नहीं समझ में आएगा. SWOT analysis of China, right? So strengths always was inexpensive labor, educated workforce, scale, plenty of natural resources, accelerated economic growth. Weaknesses, inequality थी, जो वहां थी यहाँ पे भी वही है. रूरल इन अर्बन इनइक्वालिटी वहां पे भी बहुत थी, राइट? सरप्लस लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन इन डेवलपिंग, करप्शन वहां भी बहुत है. ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट है तो करप्शन नहीं होता है. एंड पॉलिटिकल रिस्क ऑलवेज प्रिवेल्ड इन चाइना, राइट? अभी भी है, इट्स नॉट कंप्लीटली गॉन पॉलिटिकल रिस्क. Opportunities, streamlining government processes, ease of regulations, cooperation with India, more mergers and strategic alliances, right? Threats, Chinese government could hurt growth, dependence on trade, aging population. आज की डेट पे ये जो प्रॉब्लम तुमने शुरू की थी ना वन चाइल्ड पॉलिसी की, आज वो प्रॉब्लम बड़ी हो गई है. क्योंकि जो वन चाइल्ड पॉलिसी तुमने 1979 से, इमेजिन करो ना, 80 ले लो तो 40 साल, ठीक है, 40 साल पहले जो तुमने शुरू करवा दिया, उसका रिजल्ट क्या है? आज तुम्हारे पास एक एजिंग पॉपुलेशन, मतलब उस समय के जो एडल्ट्स थे, मतलब लेट्स से पीपल हु वर ऑफ द एज ग्रुप 25-30 in 1980, they could have only one child and they only have one child to depend. तो अब क्या हो गया है, उस एक चाइल्ड के ऊपर
काफी बर्डन आ गया। अब उस एक चाइल्ड को अपनी फैमिली भी सपोर्ट करनी है, ठीक है, अपनी वाइफ की भी फैमिली सपोर्ट करनी है, और अपनी फैमिली, अपने फादर मदर को भी सपोर्ट करना है, तो उस एक बंदे पे बहुत ज्यादा बर्डन है। तो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन व्हिच इज देयर इन चाइना, व्हिच इज देयर इन जापान, व्हिच इज देयर इन सिंगापुर। तो दीज थ्री कंट्रीज आर फेसिंग अ मैसिव प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, की उनकी पूरी वर्कफोर्स बूढ़ी हो चुकी है, 60, 65, 70, 75, और ये पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है बिकॉज यू डोंट हैव उतने नंबर ऑफ people to support that population, वो है ही नहीं ना। तो they are suffering from a reverse problem, the aging population problem. Keep that in mind ना, aging population की problem कहाँ कहाँ है? चाइना, जापान, सिंगापुर। Now let's introduce the Belt and Road Initiative, ठीक है। Now पहले बोला जाता था कि एक रीजनल इनिशिएटिव है, but it's a global initiative now, and Bank of China's involvement in Belt and Road Initiative. तो let's have a look at this part, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैप्स के साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अदरवाइज ये समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। नाउ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो। आई थिंक यदि विजिबल है लैपटॉप पे होगा तो देख। October 13, 2013, President Xi Jinping delivered an important speech in Indonesian parliament. He clearly pointed out China could be committed to greater connectivity to the ASEAN countries and vigorously maritime Silk Route मनाएंगे। 15 तक चाइना अनवील कर दिया बेल्ट एंड रोड एक्शन प्लान टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क इन प्रमोटिंग प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन ऑल द फील्ड्स। अब इसको एक बार जरा पढ़ लो। I am giving you 2 minutes to go through this slide.
सॉरी, अब ठीक है। सो जी जिनपिंग बेसिकली यू कैन से, देखो चाइनीज के साथ एक थोड़ा सा इशू है, वो समझ के चलो। एंड दैट इज द रीजन वी इंडो चाइना वॉर 1962। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना के साथ क्या है कि वो जो बोलते हैं वो उस पर टिकते नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी ऑन देयर वर्ड्स, राइट। अब 1955 में जो पंचशील एग्रीमेंट किया था नेहरू जी ने, और चाइना के प्रीमियर उस समय कौन थे, फॉरगेटिंग द नेम, चाइनीज नेम थोड़ा मुश्किल होते हैं याद करने में। 56 पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन नेहरू जी एंड देयर वाज अ चाइनीज गाय। एक मिनट, कोई याद करेगा, बताएगा? नहीं, माओ ने नहीं साइन किया था, साइन करने कोई और आया था। निकिता, माओ डिड नॉट कम टू साइन दिस पंचशील एग्रीमेंट, किसी और ने साइन किया था। देयर वाज अ चाइनीज प्रीमियर, सेकंड टू माओ थे। करेंगे उसको, खोजते हैं जरा, मिल जाएगा। किसी ने खोजा? चाउ एन लाई, करेक्ट सृजन, थैंक यू। सो चाउ एन लाई वाज द पर्सन, राइट, who signed this agreement with जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेहरू जी हो गए निश्चिंत कि चाइना के साथ तो हिंदी चीनी भाई भाई एंड पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो हम निश्चिंत हो गए। बट चाइना हैड डिफरेंट प्लान्स अबाउट टिबेट एंड दे इन्वेडेड टिबेट एंड दे फाइनली इन्वेडेड इंडिया आल्सो। ठीक है, एंड ह्यूज पार्ट्स ऑफ अरुणाचल and parts of Kashmir was taken away by the Chinese, right? They took away a huge part out of that invasion, right? So Chinese क्या होते हैं, you can say they sugarcoat their word, they're actually not meaning what they say. So same thing is being done by Xi also. When he launched this initiative, he said it is for cooperation, it is for finding trade, it is for benefit of the people, it is for finding a new route between China and Europe, and all those things like facilities build karenge, connectivity build karenge, and all those things, cultural exchange hoga. But all this is probably a mask, right? The actual intention is to basically expand China on the वेस्टर्न फ्रंट। अभी मैं आपको मैप दिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सोच क्या रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्रेमवर्क है वो एज अ पॉलिसी डिसीजन वर्ल्ड के सामने इस तरह से रखा गया। 5 कोऑपरेशन प्रायोरिटीज, दिस इज व्हाट चाइना प्रोजेक्टेड टू द वर्ल्ड कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। ये हम कोशिश करेंगे करने की। हाँ, कर रहे हैं। नाउ व्हाट इट मींस, लेट्स हैव अ लुक। अगली स्लाइड में मेरे ख्याल से वील गेट दिस करेक्ट, वंडरफुल। अब यहां थोड़ा आपको ज्योग्राफिकली देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, राइट? नहीं ऐसा मत करो, शॉर्टकट मत मारो, रुको। तो जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये है तुम्हारा रोड, ये रोड है पूरी, ठीक है, क्योंकि ये लैंड से जा रही है। और ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे मैरीटाइम रूट्स हैं। तो बेल्ट एंड रोड, तो ये बेल्ट है तुम्हारा, जो नीचे वाला पार्ट है ये बेल्ट है। this is what your belt part is. You can say, you can use another color. Yeah, ये बेल्ट है, ये बेल्ट है, ये राइट, ये बेल्ट जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसलिए इसको बोला जाता है BRI, बेल्ट एंड रोड। तो बेल्ट नीचे की तरफ मैरीटाइम रूट्स एंड रोड ऊपर। नाउ इफ वी कैन कम अक्रॉस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है। पोर्ट्स आर रोड्स, रोड्स नहीं है यार, रोडवेज आर बेल्ट्स, बेल्ट एंड रोड नहीं, BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना। ठीक है, चलो ये तो खैर करते हैं अभी डिस्कस, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। नाउ इफ यू सी, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सुनो,
चाइना का जो ये वाला पार्ट है जो मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं, है ना, इसको ध्यान से देखो। तो ये जो पार्ट है चाइना का, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, और यू कैन सी द कोस्टल पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड था। तो मैंने जब बोला कि जो नए टाउन्स बनाए गए, नए ओपन सिटीज बनाए गए, वो इस एरिया में बनाए गए, ये सो दिस इज व्हाट यू कॉल द चाइनीज हिंटरलैंड, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, विच इज नॉट कनेक्टेड टू द पोर्ट्स। अब आप एक चीज समझ में आ रहा है, यदि आपने सारे अपने बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपने यहां बना लिए हैं, इधर पे भी, ठीक है। अब इन इकोनॉमिक जोन्स पे, यहां भी है तुम्हारे पास इकोनॉमिक जोन्स, यहां पे भी है, यहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट टाउन्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम अभी क्या होती है, अभी, राइट, व्हाट द चाइनीज प्रोड्यूसर्स फेस द प्रॉब्लम, आपको ये सारा सामान इधर शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, और फिर आपको इसको मैरीटाइम रूट, दैट मींस व्हाट डू यू कॉल इट, द शिप रूट से आपको यहां से घुमा के यहां से लाके यूजिंग दिस रूट, ये इस रूट पे चलाना पड़ता है, ठीक है। अब इस रूट की प्रॉब्लम क्या है, देखो जल्दी देखो, ये सपोज तुम यहाँ इंडिया नहीं भी गए, कोलंबो से चले गए, कोई बात नहीं, तो यू हैव टू कम दिस वे, राइट, एंड देन यू आइदर टेक दिस रूट, ये वाला रूट लोगे यदि तुमको यूरोप पहुंचना है तो, ठीक है। तो तुम इधर से जाओगे और यहां से निकलोगे, एक तरीका तो ये है, नहीं सॉरी, ये कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, रुको 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 रुको, कौन क्या बोल रहा है, लॉन्ग रूट, यस इट इज अ वेरी लॉन्ग रूट, तभी तो प्रॉब्लम है ना, तभी तो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो शिप रूट है, ये काफी लंबा सा रूट है कि यहां से आओ और यहां से घुसो, और फिर यहां से सुएज कैनाल होते हुए तुम, सुएज कैनाल होते हुए तुम यहां से निकल जाओगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से निकलती है बात, ठीक है, सुएज कैनाल होते हुए तुम यहां से निकलोगे एंड यू रीच यूरोप। नाउ दिस शिप रूट इज लेंदी, राइट, एंड इट टेक्स मोर टाइम बिकॉज शिप्स ट्रैवल एट अ मच मच लेसर स्पीड, ठीक है। तो चाइना का आर्ग्यूमेंट ये था कि यहां से यदि मैं रोड्स और हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क डेवलप कर दूं इस रोड पे, यू नो, इस पॉइंट से, यहां से, सो आई विल बी एबल टू एक्सेस व्हाट इज कॉल्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। ये आ गया तुम्हारा, ये ईस्टर्न यूरोप यहां से टच हो गया तुम्हारा पूरा आराम से, राइट, एंड जो टिपिकली ये एरिया टच करना चाह रहे हो तुम, ठीक है। अब प्रॉब्लम विद ईस्टर्न यूरोप इज अनदर प्रॉब्लम। सपोज तुम इस सी रूट से यहां से आ भी गए, तो तुमको यहां पे कहीं ना कहीं डॉक करना पड़ेगा, और फिर बाय रेल तुमको फिर इतना प्रोडक्ट अंदर की तरफ मूव करना पड़ता है। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हाट दे थॉट कि दे विल क्रिएट अ रोड एंड आल्सो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क थ्रू these countries and you know loop them in and you make it shorter। तो ये रूट शॉर्टर है। सेकंड, ये रूट क्या है, हाई स्पीड रेल्स चल सकती हैं इसके ऊपर, ठीक है, ट्रेन्स जा सकती हैं, वैगन्स जा सकते हैं ऑलमोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 80 to 100 किलोमीटर पर आवर, जबकि if you go by sea the route is longer and the maximum speed that these big ships can have is around 30 kilometers per hour। तो बहुत धीरे चलता है मूवमेंट, राइट। सो दिस गिव्स देम एक्सेस टू ईस्टर्न यूरोप मार्केट्स एंड आल्सो टू यूरोप। तो इन्होंने ये रूट बनाया। तो यदि तुम समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री सारी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे सेंट्रल एरिया में, तो इट इज मेकिंग मोर सेंस फॉर यू टू बिल्ड दिस नेटवर्क टू क्रॉस ओवर टू यूरोप, राइट, राइट, राइट। तो दैट इज प्रॉब्लम। प्लस अब यहाँ पे एक और दो प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे जो जो तुम्हारा मलेशिया के ऊपर से जो रूट जा रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर से, ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये चोक हो सकता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इफ दिस कंट्रीज डू नॉट अलाउ यू टू मूव, तो फिर और लंबा रूट लेना पड़ जाएगा यहाँ से। जितना लंबा रूट लेते जा रहे हो, तुम्हारा टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज व्हाट दे डोंट वांट, ठीक है। तो अब इसको भी जरा क्लियर करते हैं। So I think it's very clear कि what are they trying to build, ठीक है, वो क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So let us be clear with that, ठीक है।
हाँ, अब एक और चीज होती है, व्हाट दे डिड वाज दे टुक केयर ऑफ दिस पोर्ट। यहाँ पे श्रीलंका में उन्होंने पोर्ट पकड़ लिया जिसमें उन्होंने चाइनीज फंडिंग की। नाम बताओ, नाम बताओ, मैं लिख देता हूँ। सर हम्बनटोटा। करेक्ट, हम्बनटोटा, ये हम्बनटोटा पोर्ट पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कि श्रीलंका को बोला कि हम आपको हेल्प करेंगे बनाने में, ये करने में, वो करने में, एंड इवेंचुअली दे almost run this port as their own port because the Sri Lankan government is unable to repay the amount. The Sri Lankan government is unable to repay the amount. So Hambantota is their own port kind of a thing. Similarly, they have made investments very critically, right? Like they made investments here also. यहाँ पे तो they have built a lot of inroads here. यहाँ पे भी रेल नेटवर्क बना दिया इन्होंने, यहाँ से रेल नेटवर्क जा रहा है, ये रेल नेटवर्क्स यहाँ से इस तरह से जा रहे हैं, so that they can reach Africa after one docking point. यहाँ पे एक डॉकिंग पॉइंट होगा, वहां से निकल जाएंगे पूरे अफ्रीकन मार्केट को सपोर्ट करने के लिए. देन शिप्स बनेंगे, यहाँ से शिप्स यहाँ से भी जाएंगे, ऐसा करेंगे. दैट इज हाउ दे आर प्लानिंग टू डू. बट द बेल्ट, ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये चली जाएगी तुम्हारी यूरोप को क्रॉस करते हुए. ठीक है, मम्बोसा, यस, देयर वाज अनदर नेम, एक और नाम है जिसपे काफी प्रॉब्लम हुआ था. सर इन मालदीव्स आल्सो. हाँ, सर मालदीव्स आल्सो. मालदीव्स तो अलग है, बहुत दूर में है. मालदीव्स तो यहाँ है यार, मालदीव्स तो ये इधर है, ये मालदीव्स है ये. सर लेकिन वहां भी ये लोग कर रहे थे इन्वेस्टमेंट. हाँ, इन्फ्लुएंस कर रहे थे. मालदीव्स यहाँ पे है. ठीक है, देखो एक चीज समझो, in a lot of good B schools you are expected to know the world geography. रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जब तक तुमको वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप अपने आंखों के सामने क्लियर नहीं है ना, तुम्हें आधे से ज्यादा चीजें समझ में ही नहीं आएंगी कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है. सो हैविंग अ गुड यू कैन से अ विजुअलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी plays a very important role in your understanding, right? So this is how this thing, they actually don't want to choke Indian economy, but वो बोल रहे हैं कि यदि तुमने पूरा ये मैरीटाइम रूट कंट्रोल कर लिया, यदि ये रूट तुम्हारे हाथ में आ गया, चाइनीज के हाथ में आ गया ये पूरा इंडियन ओशन वाला रूट, ठीक है, यदि ये रूट पूरा इन्होंने पकड़ लिया तो दे कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ वेसल्स, स्पेशली ये इधर से सुएज कैनाल से, यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, तो वेसल्स का काफी कंट्रोल हो सकता है. So very clear cut idea about what the Belt and Road Initiative is. It's basically trying to move the goods from Chinese hinterland by roads and high speed rail networks across Asia and across Western Europe to Europe. This is what they want to reach. यहाँ ये पहुंचना चाहते हैं. ठीक है, and Russia has been a signatory to the Belt and Road Initiative. तो रशिया भी एक, देखो रास्ता बिल्कुल रशिया होते हुए जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, पुराना डायग्राम है, अभी नया डायग्राम काफी एडवांस हो चुका है, इसमें काफी कुछ और बन चुका है. समथिंग ऑल हैज बीन ऑलरेडी मेड, ऐसा नहीं कि बनना है, इट्स ऑलरेडी मेड, बहुत कुछ बन चुका है. सो वी शुड क्रिटिकली अंडरस्टैंड व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू. वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग वाली जो चीजों को शिफ्ट करना चाह रहा है यूरोप की तरफ. अब बता दो रीजन क्या है, क्यों? Why is it planning to ship a lot of its merchandise to Europe directly via the roads and railway networks? Because उनको ये समझ में आ गया है कि यूएस के साथ जो सिचुएशन चल रही थी, इनको बहुत पहले से समझ में आ गया था. यूएस इज एक्चुअली नॉट लाइकिंग चाइनाज यू कैन से राइज इन एशिया, बिकॉज यूएस को ये समझ में आ गया है कि चाइना यदि एशिया में राइज कर जाएगा तो यूएस का जो दबदबा है, यू नो द काइंड ऑफ हेगेमनी दैट इट कमांड्स इन द रीजन, दैट वुड बी diluted to a large extent, and US does not want China's emergence. तो ये इनको समझ में आ गया था कि यूएस के साथ आने वाले समय में we'll have a tiff, so we need to develop new markets to sell our products. हमको अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नए मार्केट्स डेवलप करने पड़ेंगे,
और सी रूट से इट इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब इमेजिन करो हाँ, यहां पे है तुम्हारा बांग्लादेश, ठीक है, मैं सर्कल मार देता हूं एक बार हाँ? ये है तुम्हारे बढ़िया वाली कंट्रीज, बताओ ये कौन सी कंट्रीज है? ये है तुम्हारे वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार, ये वाली कंट्रीज आ गई, ताइवान एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके लिए तो ये रूट और शॉर्टर पड़ रहा है, क्योंकि चाइना में तो यहां से घूम के आते हो इतना, राइट, ये तुम डायरेक्टली पहुंच जाते हो यहाँ से, तो इनको भी शॉर्टर पड़ रहा है। दे आल्सो हैव द सेम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दे आर आल्सो हैविंग लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे आर आल्सो हैविंग एडवांस पीपल टू वर्क ऑन फैक्ट्रीज, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इनके पास भी। एग्रीड? सो now this thing is advantageous to Bangladesh, to Vietnam, to Cambodia, to Taiwan। ये एडवांटेज इनके पास आ रहा है, जो इनके पास था, जो चाइना के पास था इनिशियली, अब नहीं है, ये एडवांटेज यहाँ आ गया। तो दे आर ऑल्सो फाइंडिंग एक्सेस टू दीज मार्केट्स इजी ना, उनको भी इंडिया एक मार्केट दिख ही रहा है इतना बड़ा यहाँ पे, प्लस इनको ये साउथ ईस्ट एशिया तो दिख जाता है, ये तो इन्हीं का मार्केट है। देन दे हैव ऑल्सो एक्सेस टू दीज मार्केट्स ना, अरेबिया एंड ऑल दोस थिंग्स, तो इनके पास भी वो एक्सेस आ गया। तो चाइना को समहाउ ये लॉन्ग मैरीटाइम रूट कंट्रोल करना है, टू कंट्रोल दीज गाइज आल्सो, इनको रोकना चाहते हो तुम यहाँ पे, बिकॉज़ वेसल्स रोक लोगे तुम यहाँ पे, एंड they build up a parallel route network to will connect them continuously to Europe, जो कि उनका नया मार्केट है। So it's a new market that they want to try and target, right? Okay. G8+5 करेंगे कल कर पाएंगे, G8+5 आज नहीं हो पाएगा ये सब। So this is the basic understanding of what China is trying to do and what is the intention. Now the intention, while it has been cited by Xi Jinping, is this, that we are just doing it for commercial purposes and all those things, but the idea is it's strategic also. This is largely a strategic move that they are doing, because once you have networks, once you have networks, you know, इस काइंड का तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हो गया, आप एक और काम कर सकते हो। बताओ, जब आपके पास हाई स्पीड रोड एंड रेलवे नेटवर्क डेवलप है, कैन यू नॉट सेंड योर आर्मी ऑल्सो टू दिस प्लेस? सुन रहे हो मेरी बात? इसी रोड और रेलवे नेटवर्क से तुम अपनी आर्मी, अपना टैंक, ये भी मूव कर सकते हो। एक बार नेटवर्क बन गया, उसके बाद तो यू कैन मूव योर आर्मी। जो आज यूएस इतने आसानी से अपने वॉरशिप्स इधर से उधर घुमा लेता है पूरे वर्ल्ड में, चाइना भी तो यही चाहता है कि कल को हम भी यही करें। जो यूएस ने किया है इन द 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में हम करेंगे। दिस इज व्हाट दे वांट। So this network which has been built for the purpose of trade and commerce can be used for military movement also. You can rapidly move your military also to all these places. You can always move your military here, and you can always control by means of ports. You will be able to control the operations in this route. और साउथ ईस्ट एशिया, यदि तुमने ये रूट कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारे पास साउथ ईस्ट एशिया का पूरा कंट्रोल आ गया। You will be able to control everything from Japanese movements to Korean movements to Malaysia, everything that is under your control. And Malaysia etc. cannot match China in terms of naval might. वो तो कभी भी नहीं मैच कर पाएंगे, right? String of pearls, correct. String of pearls इसलिए बोला जाता है कि ये strategic ports है, जहां पे तुमने यदि अपना कब्जा जमा लिया, that means you have control over the Indian Ocean. So basically it is the Indian Ocean that you want to control, और कुछ नहीं है, right? हाँ, क्रूड ऑयल भी ट्रांसफर हो जाएगा ओपेक से चाइना, जब तुमने ये रूट बना दिया तो, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो समझ में आ रहा है, बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है। अभी आप उसको ट्रेड एंड कॉमर्स बोल रहे हो, पर कल को उसको आप मिलिट्री के लिए भी यूज कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है? So this is what China is doing. So it is very deceptive. It is actually very deceptive कि ये करना क्या चाह रहे हैं, but the world is watching with caution कि so this is the kind of thing, the strategic orientation of Silk Route, economic belts and its direction, right? And maritime Silk Road, sorry Nikita was right, सिल्क रोड है और इकोनॉमिक बेल्ट है,
बेल्ट ये है, सॉरी, राइट. तो दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, राइट. This is where they are trying to build in connecting China with Southeast Asia, and this is the way they are trying to connect the whole thing, right? We've seen that. And China Mongolia corridor, Eurasian corridor, then China Pakistan corridor. This is what is dangerous for us. मालूम क्या डेंजरस है हमारे लिए, बता रहा हूँ, एक मिनट. हमारे लिए जो CPEC है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बहुत डेंजरस है हमारे लिए. बताता हूं क्यों. हाँ, क्योंकि वो कॉरिडोर आता है इधर से. मैं यहाँ दिखाऊं क्या तुमको? यहाँ बेटर दिखेगा, चलो. तो ये जो CPEC आता है ना, चाइना वाला जो कॉरिडोर आ रहा है तुम्हारा, वो यहाँ से आ रहा है रोड से. इसको बड़ा करते हैं थोड़ा. यहाँ से what they are trying to do is, चाइना के इस पार्ट से they are trying to build a road and rail network through POK and then K and to कराची. नीचे यहाँ ये कराची है तुम्हारा, ठीक है, ये कराची. ये यहाँ से CPEC बना रहे हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है. अब the moment they are able to build and control this corridor, the whole Kashmir is open to them. वो यहाँ से पूरा कश्मीर पकड़ सकते हैं ये, if they have that access. And this is the reason India is opposing the Belt and Road Initiative, क्योंकि that would be a big threat to India's sovereignty. यदि ये CPEC पूरा उनके हाथ में चला गया, पाकिस्तान is a weak country, पाकिस्तान is an economically unstable country, political unstable, सब तरफ से unstable है. The moment China builds this CPEC and starts operating it, it would have access right across Kashmir. कश्मीर के थ्रू एंड थ्रू एक्सेस रहेगा उनके हाथ में. अगेन मैंने वही कमर्स करेंगे, बट यू कैन ऑलवेज यूज इट फॉर ट्रांसफर मिलिट्री आल्सो ना. तुम मिलिट्री भी ट्रांसफर कर सकते हो उससे हमेशा. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन यूज इट फॉर अ मिलिट्री पर्पस आल्सो, ठीक. सो that thing is there, right? Now अब आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. So result from the Belt and Road Initiative, देखो क्या क्या बन चुका है चाइना से. ये देखो आइडिया ये है, इस तरह की रोड बनेगी. चाइना यूके रूट बन रहा है. इमेजिन दिस थिंग. चाइना से पूरी की पूरी ट्रेन चलेगी जो यहाँ से घूमते 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 मॉस्को होते हुए लंदन चली जाएगी, ठीक है. इनफैक्ट विल बी सरप्राइज, चाइना में एक सबसे बड़ी ट्रेन शुरू कर दी है स्पेन जाने के लिए, राइट. तो चाइना टू स्पेन बाय ट्रेन. You can go to Spain via train. You don't need to ठीक है. So travels 12,000 kilometers across 10 countries. ये ट्रेन निकलेगी, देख रहे हो. This is what the plan is. So wonderfully depicted here, right? So Belt and Road Forum for International Cooperation, more than 100 countries have expressed their desire to be a part of this, because this is being, नहीं डेटा थोड़ा सा पुराना है निकिता, डेटा थोड़ा सा पुराना है, right? Because I was unable to find the new data with slides ना, data और slides का नया डेटा नहीं है, ठीक. But look at the plan, पूरी की पूरी कजाकिस्तान और रशिया होते हुए ये पूरा रास्ता खुल जाता है इनके पास यूरोप जाने का. they are entering Europe, they are entering Germany, and then they are going to London, right? Completely by road. So स्पेन को ट्रेन हमने शुरू कर दी है. they already started a train to Spain, ठीक है. ओके, कर दूंगा शेयर, ठीक है. now the point is, अब प्रॉब्लम कहां पे है. आइडिया अच्छा है. they have already signed, 68 countries already have signed their the document to be a part of Belt and Road Initiative. So 68 countries ने तो साइन कर ही दिया है इस चीज को, ठीक है.
Now, why are we discussing it is because if this happens, यदि ये बना लेते हैं और ये इसको implement पूरी तरह से कर लेते हैं, you cannot stop China becoming the economic as well as military superpower. You cannot stop China from becoming a economic and hence a military superpower. जो अमेरिका ने किया है to the 20th century में, they plan to do exactly the same in the 21st century. और यदि आपके हाथ में एशिया और यूरोप आ गया, ऑब्वियसली आप वर्ल्ड के सुपर पावर बन ही गए. यूएसए को तो आप आइसोलेट कर दोगे बहुत आसानी से. यू विल बी एबल टू आइसोलेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. So this is the agenda, you can say, to becoming the economic and military superpower of the world. Right? अब इस पूरे प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट बताओ. Apart from जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, there is one benefit that I haven't discussed. Think about it and you can put it in the chat box, please. Yeah. एक बेनिफिट जो अभी तक मैंने बताया नहीं है. इस पूरे प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मैंने अभी तक बताया नहीं है. हाँ, बेनिफिट टू चाइना ऑब्वियसली. अपने को क्या होने वाला है. नहीं, नॉट काउंटरिंग इंडिया. सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो. चाहिए यार, चाइना को क्या बेनिफिट मिल रहा है ये बताओ. शुभम बोल रहा है इंडिया को आइसोलेट कर देंगे फ्रॉम यूरोप. नहीं 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 प्रज्ञा, सबको नहीं. वो तो मैं बोल चुका हूं प्रज्ञा, सुपर पावर बनने वाली बात तो मैं कर चुका हूं. मैंने बोला ना, मैंने एक चीज अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया, बताया नहीं है. यार एमबीए करने वाली जनता है, बड़े इंक्विजिटिव इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं. बताओ. लेजिटिमाइज क्लेम ऑन साउथ चाइना सी हो सकता है. डेड ट्रैप में सबको डालना, दैट इज नॉट अ बेनिफिट. वो तो कर ही रहे हैं. बोल चुका हूं. मैंने एक चीज तो बोली नहीं अभी तक, मैं यही बोल रहा हूं बस. हाँ आदित्य, एब्सोल्युटली करेक्ट. भैया जब आप चाइना बना रहा है ना, आर वी क्लियर? बना कौन रहा है ये प्रोजेक्ट? चाइना. तो इस पूरे प्रोजेक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे चाइनीज कंपनी. अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े बड़े रोड और रेलवे नेटवर्क्स बनाने कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो वी बैक. आदित्य ने आंसर दिया था कि चाइनीज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, पूरा सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ चाइनीज कंपनीज को मिलेगा. तो they'll have a massive employment opportunity for their people. आज की डेट पे पोस्ट कोविड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है चाइना में? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खराब हो रही है बिकॉज कंपनीज आर
moving out of China and shifting to countries like Vietnam, Cambodia, Bangladesh, India, etc. यही हो रहा है ना। कोविड में कंपनीज ने वहां से अपना बिजनेस कंपनीज को मिलेगा। सो जब चाइनीज कंपनीज को काम मिलेगा तो आप समझ रहे हो इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने ट्रिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। तो इतने ट्रिलियन डॉलर्स का काम किसको मिलने वाला है? चाइनीज कंपनीज को। तो चाइनीज पीपल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट, और किसी को थोड़ा ना मिलने वाला है इसमें, राइट? So they are creating employment opportunities for the next 20-30 years. 20-30 साल के लिए employment opportunity create कर ली इन्होंने। मतलब 2015 से शुरू किया है, इनका टारगेट है कि 2035 तक बनाते रहेंगे इसको आराम से, धीरे धीरे करके। तो 2035 अगले 20 साल के लिए तो हमने अपने रेसिडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली। इमेजिन कितना बड़ा काम किया, और वो भी वर्ल्ड में। मतलब चाइना के बैंक्स का पैसा, चाइना के बैंक्स पैसा डालेंगे, ठीक है, उसका जो रिटर्न है वो चाइना की कंपनीज को वापस मिल जाएगा, राइट? लुक एट द ब्यूटीफुल साइकिल दैट दे हैव क्रिएटेड। तो फंडिंग बाय चाइनीज बैंक्स इनटू प्रोजेक्ट इज रन बाय चाइनीज कंपनीज एम्प्लॉइंग चाइनीज लेबर एंड इट फ्लोज बैक टू चाइना। हो गया काम। तो वर्ल्ड में पूरा पैसा आपने घुमा दिया, वर्ल्ड का पूरा पैसा ले लिया, एंड इट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू Chinese currency. Obviously you will become the economic superpower and then the military superpower, and once this project is done, completed by the year 2030 जो इनका टारगेट है, we'll see that China would be an economic superpower as well as a world military superpower also. सबसे बड़ी बात है तुम्हारे पास नेवल रूट्स कंट्रोल में आ गए, तुम्हारे पास लैंड रूट्स कंट्रोल में आ गए, खत्म। You can do anything that you want now. Who will oppose? India जैसी कंट्री हम अपोज भी नहीं। The moment these kind of things are in place, एक बार ये बना के ले गए ना इतना कुछ, फिर तो भूल जाओ that we'll be able to done. Yeah. What USA did in the post Second World War. USA का सारा जो ग्रोथ हुआ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है। इट्स नॉट प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उनके यहाँ 1929 और 1933 डिप्रेशन चल रहा था वहां पे। दे वर फाइटिंग डिप्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो हालत ही खराब थी वहां की। सारा गेम जो चेंजर हुआ दैट इज सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसके पहले यूएसए वाज नॉट दैट ग्रेट एंड डूइंग दैट ग्रेट इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, दोनों में से किसी में भी। करेक्ट। सो they want to do the same thing. Absolutely. It is not why are other countries allowing for China to move from their boundaries? Simple है यार। आप ये बताओ ना, वीक, राइट? सो यूरोप को भी ऐसा लग रहा है कि this side China and get these kind of products. अच्छा ऐसा है ना, उल्टा भी तो है भाई, ये भी तो सोचो ना। एक चीज और बता रहा हूँ, चलो उल्टा सोच लो, उल्टा सोचो, ठीक है? यहां से प्रोडक्ट्स उल्टे भी तो मूव होंगे ना यहाँ पे, राइट? सो अब जर्मनी से तुमको अच्छी हाई एंड कार्स मूव करनी है तो तुम इस रूट से मूव कर दोगे ना वापस, रादर देन सी रूट से। मूव इट दिस रूट। सो दे आल्सो वांट इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैपन। और ईस्टर्न यूरोप में तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। दे वांट इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी डेवलप्ड एंड चाइना इज डेवलपिंग इट। सो नथिंग रॉन्ग विद देम आल्सो। वो बोलते हैं हम तो कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है उस चीज के लिए। सो दिस इज व्हाट द हाई आइडिया इज, दैट दे आर बेसिकली looking at बोलो, becoming the economic and military superpower. Simple. Using these two routes, the Belt and Road Initiative, right? आगे बढ़ते हैं। It's no longer a regional initiative, right? तो we have the data, थोड़ा सा पुराना है, राइट? तो फ्री ट्रेड, ये सब बेसिकली डेटा है। एफटीए ऑलरेडी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। चाइना आरसीईपी के साथ कर ही चुका है। हम इंडिया, वी हैव ऑप्टेड आउट ऑफ आरसीईपी। डेवलप्ड कंट्रीज के साथ चाइना, न्यूजीलैंड, चाइना सिंगापुर, चाइना आइसलैंड, चाइना स्विट्जरलैंड, चाइना ऑस्ट्रेलिया, चाइना साउथ कोरिया, दीज एग्रीमेंट्स आर ऑलरेडी डन।
Bilateral agreements with developing countries, China, Pakistan, China, Chile, China, Peru, China, Costa Rica, already done, right? Free trade zones in China बन चुके हैं. Being negotiated multilateral trade zones. If you go downstairs, थोड़ा सा नीचे देखो. China, CGC, Japan, Korea, free trade zone, ASEAN free trade zone, bilateral free trade FTA agreements with Norway, Sri Lanka, India, China free trade zone initiative जिस पे discussions चल रहे हैं. We are not ready to do it because we are objecting to CPEC, right? So if you look at this chart, basically, China has already signed free trade agreements, with the number of countries. They have already free trade zones. Then you have multilateral being negotiated and being discussed. Okay. So this is what it is trying to do. It is going to become the next United States of America. Simple ना. इतना कुछ कर रहे हैं. इतना कुछ कर रहे हैं. अच्छा, आपस में चैट मत करो प्लीज, एवरीवन पे मत डालना. Right? So they already have a lot of things done. See, RCEP mein they are the leaders because India decided to opt out of RCEP. So they are the leaders in RCEP now, right? So that's important. So this is the way things are. Like, अब देखो कहाँ तक चले गए हैं. Peru, Costa Rica. That means you have gone to South America also, right? South America तक जा चुके हैं. Okay. So Belt and Road Initiative projects funding are mostly regional, most developing countries by China's government policy banks through concessional government loans. New BRICS Development Bank, Silk Road Fund, AIIB, Asia Infrastructure Investment Bank was created. Okay, providing additional funding for a combined capital of $190 billion. China Commercial Bank, the Bank of China, pledged $100 billion. 2015, the first ever private equity fund was created. 2000, Deutsche Bank, Germany, largest bank, plans to finance $3 billion of Belt and Road initiatives. Hong Kong, the Security and Future Commission says it's willing to approve this. AIIB has partnered with World Bank and Asian Development Bank, right? ये सब चल रहा है. So that means China is very serious about this. Now the only hassle that Xi Jinping never thought or planned was COVID. इस पूरी प्लानिंग में कहीं भी कोविड नहीं था. They never have this. इनके पास अभी भी to be very frank, China still does not have a COVID vaccine. Because I was watching the news, I think yesterday, right? Correct me if I'm wrong. ठीक है? हाँ कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा, जल्दी अपलोड करा दूंगा. I was watching the news last night. What it says is Bangladesh में actually China ने बोला था कि we'll be supplying you vaccines, and they said that we are doing trials and we'll give you the vaccines. But China asked Bangladesh to purchase the vaccines, and India decided to free of cost. बोले हम gift कर देते हैं. So India is also playing on this, you can say the vaccine diplomacy. Now there's a new word, vaccine diplomacy. उनको समझ में आ गया कि भैया तुम तो बना के बेचोगे, तब तक तो हम उठा के सप्लाई कर देंगे. Now there are talks between even Saudi Arabia to buy Indian vaccine now, and major of the world, so including Nepal and Brazil and Sri Lanka, etc., have opted to go for the Indian vaccine, right? So COVID has somehow, shaken their plans. ये plan इनके थे नहीं. COVID was nowhere in the picture. So COVID has badly shaken them. Now their economy is in bad shape currently because a lot of companies have opted to move out of China. A lot of companies have opted to move out of China. They're moving out of China. Every moment in the last 9 months, if you look at the number of companies that have folded their operations in China and gone out, it is a good number. And they have gone out to countries like Cambodia, Vietnam, Taiwan, and Malaysia, Indonesia, India, Bangladesh, right? So in countries में चले गए हैं. So Chinese economy right now is under severe pressure. Now the problem is, if the economy is under a severe pressure,
the banks are also under severe pressure and they cannot do the lending that they have pledged. जो इन्होंने pledge कर दिया था ना कि इतना हम कर देंगे, this much will fund, this much will fund. Problem is you don't have those funds now. हाँ, तो ग्रोथ रेट तो has fallen in COVID ना, वो तो हुआ ही है. और चाइना में तो सबसे पहले बैन लगे थे, तो नेचुरली चाइनीज गुड्स वर बैन्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. तो काफी बैन्स लगे हुए हैं अभी. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना. तो दे डिड नॉट हैव एनी preparation for this kind of a scenario. COVID has completely taken them by surprise also, right? Japan has announced a lot of companies are moving out of China. They are moving Japanese are actually moving companies out of China, their own companies out of China, and they're shifting it to more stable countries like Thailand, Indonesia, Malaysia, etc. So ये चीज कहीं भी ना थी नहीं प्लानिंग में, यहाँ पे थोड़े से हिल गए हैं. तो राइट नाउ they are shaken on the Belt and Road Initiative because they don't have the funding. और रेलवे ट्रैक का एक पंगा है ना. अब जिसको पीछे चल के देखते हैं. अब आपने यदि ये रेलवे ट्रैक बनाना है तो आपने ये पूरा बनाना पड़ेगा ना सर. यहां से जा रहे हो तो पूरा चाहिए. देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ रेलवे ट्रैक हाफ वे. अब यहां से मान लो तुम्हारा जो ट्रैक गया, ठीक है, ये चाइना से जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये यहीं तक बना है अभी. द पॉइंट इज इतना तो वेस्टेज है ना. इतना ट्रैक तो कोई काम का ही नहीं तुम्हारी, क्योंकि जब तक इट डज नॉट रीच यूरोप इट हैज अ लिमिटेड वैल्यू. कजाकिस्तान में क्या बेच लोगे यार? व्हाट विल यू डू इन कजाकिस्तान? इट हैज टू रीच. और अभी तक इनकी जो प्रोग्रेस बनी थी वो बहुत ज्यादा बन नहीं पाई है. ये वाला पार्ट पूरा हो नहीं पाया है. हाँ, दे अलाउड अ ट्रेन टू रीच स्पेन, वो हो गया है, बट दैट इज जस्ट वन ऑफ द ट्रैक्स ना. पूरा कॉरिडोर नहीं बन पाया है. सो दैट इज वेयर द फंडिंग इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ. सो दे आर आल्सो इन अ प्रॉब्लम सिचुएशन कि हाउ टू प्रोबेबली कंटिन्यू दिस होल थिंग. ये कंटिन्यू कैसे होगा? बना तो लिया है बहुत लंबा प्लान, बट अभी इसको फंडिंग करने के लिए पैसा नहीं है इनके पास भी. दे डोंट, राइट? नॉट एग्जैक्टली एंटी चाइना सेंटीमेंट. हम लोगों को लगता है हम हिंदुस्तानी है, वी आर मोर सेंटिमेंटल पीपल. कोई ऐसा एंटी चाइना सेंटीमेंट नहीं है. पीपल सीधा वांट इकोनॉमिक. देखो यार, सीधी सी बात है, वर्ल्ड मूव्स ऑन एम्प्टी स्टमक्स, है ना. जहां जिसकी जो भूखा मर रहा है वो सबसे पहले बोलता है भैया मेरा पेट भर दो पहले, और जो भी पैसा दे दे मेरे को पेट भरने का, वो सब सही है. नोबडी इज रेडी टू हैव एंटी चाइना और प्रो इंडिया और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. भूखे मर रहे हैं, जो पैसा देगा वो अच्छा है मेरे लिए. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? सो दिस इज दिस थिंग, राइट? Now बैंक ऑफ चाइना इन्वॉल्वमेंट, ये काफी अच्छे से इन्होंने किया, बैंक्स को यूज किया, राइट? सो बैंक ऑफ चाइना's न्यूजीलैंड ब्रांच ऑफिशियली ओपनड इन ऑकलैंड. सो न्यूजीलैंड हैज shown an interest in building up this initiative, right? And BOC in New Zealand has also the capital injection of itna, making the banks. तो न्यूजीलैंड में उन्होंने बैंक खोल दिया, बैंक ऑफ चाइना with the New Zealand chapter. So Bank of China New Zealand Limited, right? This is how it's doing. Bank of China New Zealand has become an important window in facilitating exchange of people. Bank of China envisions a world that builds mutually beneficial relationships. That means BOC's seminar arranged for the 8 Pacific Island countries. Look at this. So very small countries, huh? Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, Vanuatu, Niue, Cook Island, and Micronesia. So very small island countries, but सेमिनार किया गया और इन 8 पैसिफिक कंट्रीज को लूप इन किया जा रहा है, राइट? टू ब्रिंग अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, राइट? सो 10 साइट विजिट अमंग दोस कंट्रीज, financial institutions, aircraft manufacturers, and so on and so forth. So they are not even leaving the smaller countries, क्योंकि इनको ये मालूम है कि smaller countries need funds like anything. Ayush has a question. Don't you think China is betting heavy risk against risk that in future some countries might deny China's access and leverage the infrastructure for themselves? होता है, देखो है. आयुष का ये कहना है कि बोले सर वो कंट्री जिसने अपने यहाँ पूरा रेलवे नेटवर्क बना लिया, कल को बोले चाइना को तुम बाहर चले जाओ, ठीक है? आप मालूम है क्या कर सकते हो? वंस यू हैव द नेटवर्क ऑपरेटिंग, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, आपको नेटवर्क जो बनाओगे यू आर गोइंग टू हैंड ओवर टू द अदर गवर्नमेंट? आपको लग रहा है कि आप कजाकिस्तान के अंदर से जो रोड निकाल रहे हो, आप वो कजाक्स को दे दोगे चलाने के लिए? You will always have a control mechanism in place.
you will always have a policy in place, you will always have an agreement in place. ये जो roads बनती हैं और जो railway networks जो across countries जा रहे हैं, ठीक है, these have agreements. मतलब ये ऐसा ही नहीं कि मैंने आज रोड बना दी, कल तुम बोल दो कि नहीं आप. These are guaranteed by governments and World Bank जैसी चीजों के पीछे से इनकी गारंटी लगी हुई होती है. You cannot deny them. So they'll operate, they'll move their trains. You cannot deny them. आप नहीं रोक सकते उनको. It's not that easy, right? It's not that easy. They are guaranteed by the agreements. Agreement sign करके बैठे हुए हैं सबके साथ, right? So this is how things look, right? Classes, lectures by BOC, you know, to site visit to COMAX and all those things. So Bank of China is actually doing a lot of effort in generating revenues from around the world to fund this initiative. इस initiative के पीछे यदि तुम बोलो किसी का हाथ है तो वो Bank of China का हाथ है, right? काफी heavily, and Bank of China means leasing ping. ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है. इट्स ऑलमोस्ट 1.5 hours. कल हम 2, ठीक है, which are remaining, which I want to do. We are going to discuss India China थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, especially the 2 standoff that we had. एक डोकलम में हुआ था और एक अभी हुआ है, ठीक है, ये वाला 2 standoffs, India China, and more importantly the genesis of US China relations and how they were very good and now they are at very bad position. But after Trump gone and what do you call it, कौन आ गया, Biden. Joe Biden. Joe Biden. Biden in place, how that equation might change, right? तो वो थोड़ा सा US China economic issues को हैंडल कर लेते हैं कल. और इंडिया के दोनों स्टैंड ऑफ्स हैं, स्पेशली अरुणाचल वाला जो एंगल है वो, और स्पेशली जो अभी दो क्राइसिस हो चुके हैं, हमारे कन्फ्रंटेशंस हो चुके हैं, उसको हैंडल करेंगे. फॉर दैट विल बी एबल टू डू टुमारो. आज के लिए उतना है नहीं हमारे पास टाइम, एंड मोर और लेस काफी कुछ मैंने आपको बता दिया है हिस्टोरिकली कि कैसे क्या चीजें हुई हैं. सो यू कैन स्टडी. आप बेसिकली आई वांट यू टू स्टडी अ बिट हियर एंड देयर ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड चाइना. क्या हुआ, बहुत ज्यादा हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है कि माओ के रूल में क्या हुआ था. यू डोंट नीड टू गो इनटू दोस डिटेल्स बिकॉज़ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. तुमको 1979 के बाद जो चाइना चला है वो संभालना पड़ेगा, ठीक है, दैट यू नीड टू वर्क. एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट चाइनाज इशू विद क्या, ताइवान, जिसको वो चाइनीज ताइपे बोलते हैं, और उसको एक अभी भी यूएन में परमानेंट कंट्री की तरह नहीं दिया जाता है recognition, right? तो चाइनीज ताइपे की क्या कहानी है, दैट मींस ताइवान की क्या कहानी है, चाइना का इंटरेस्ट क्या है ताइवान में, वो डिस्कस करेंगे. चाइना यूएस कन्फ्रंटेशन में ताइवान एक इंपॉर्टेंट एंगल प्ले करता है, सो वी विल हैव टू टेक ताइवान इनटू कंसीडरेशन, तो वो करेंगे कल. इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एंड हाउ चाइना इज ट्राइंग टू आइसोलेट इंडियन अलायंसेस, वो कल डिस्कस करते हैं, तो वो चीज कल करेंगे, राइट. चाइना हांगकांग टाइम बचेगा तो, टाइम बचेगा तो लेट्स सी कल यदि हो पाएगा तो कर लेंगे. विल ट्राई टू टच अपॉन इट. थोड़ा सा हिस्टोरिकल एविडेंस देख लेंगे तो मिल जाएगा. 1997 में एक्चुअली हांगकांग वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रिटेन बैक टू चाइना एज अ पार्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट, ठीक है. यूएस जापान नहीं कर सकते भाई अभी, क्या यूएस जापान के साथ तो बड़े पंगे हैं, वो तो अभी बहुत, और वो अच्छा ही चल रहा है, मतलब उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा है नहीं. जहां प्रॉब्लम है हम चाइना को इसलिए पकड़ के चलते हैं क्योंकि चाइना हमारा इमीडिएट नेबर और हमारे चाइना के साथ कंसर्न्स बहुत इमीडिएट चल रहे हैं, ठीक है. इंडो जापान रिलेशंस वर ऑलवेज वेरी गुड एंड दे हैव रिमेन्ड गुड. उसमें इंडो जापान रिलेशंस आर ऑलवेज वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे बीच में. इंडो यूएस रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, काफी अच्छे हो चुके हैं, वो कोई इशू है नहीं हमारे पास, राइट. सो कॉलिंग इट ऑफ एज ऑफ नाउ. Thank you everyone, and I hope that you start reading and have some more knowledge now, better than probably rest of the students across India, because ये चीजें शायद बाकी जगह नहीं डिस्कस होगी, तो we are discussing it at length here, and all the students of time Banaras, time Dehradun, time Gwalior and time Chandigarh,
Thank you for joining us today.